after the result set metadata, we'll try to just develop just try to write down the procedure inside the database. And in that procedure, what we did, हम लोग procedure को पहले call करने की try की थी normally, actually without argument, but before that we just differentiate procedure and function. So what is the difference between procedure and function? So what is the difference? Can you please tell me what is the procedure? What is the difference between procedure and function? Yes, guys. What is the difference between procedure and function? Yes, anyone? Not this one. Yeah, fine. हम लोगों ने ऐसा कुछ डेवलप किया था. My code, create database, temp one, and etc. thing. So what is the difference between procedure and function? I'm waiting, guys. आपका आंसर चाहिए मुझे. Yes, Kaushik, Rahul, Deepak, Sneh sir. Voice clear है guys मेरा? ध्रुवी, मोहित, मीत, आवाज आ रही है guys? Yes sir, आ रही है. Okay, fine, सत्य. So मुझे ये बताएंगे what is the difference between procedure and function? So हम लोगों ने डिफरेंस कैसे लिया था कि अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको रिटर्न करके दे रहा है कुछ, so that is function according to MySQL. बट अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो रिटर्न नहीं कर रहा, so that's actually procedure. तो हमने डिफरेंशिएट किया था प्रोसीजर एंड फंक्शन को. ठीक है, प्रोसीजर इन द सेंस व्हाट, जो आपको रिटर्न करे, सॉरी जो कभी भी रिटर्न नहीं करेगा, एंड फंक्शन मींस व्हाट, जो ऑलवेज डेटा रिटर्न करता है. Okay, so here I just upload all this program, so एक बार देख लीजिएगा उसको. So in this program we have Java, inside that we have JDBC, and यहाँ हमने callable statement के सब program upload किए. So lastly हम लोगों ने कौन सी चीज की थी? Swap two numbers, है ना? लास्ट में हमने ऐसा कुछ किया था, swap two numbers by using the callable statements. So that was this is the actually program. सबसे पहले हमने database connectivity की थी by using by first हमने driver load किया था by just calling class.forName function. After that हमने connection generate किया था by just call the get connection function, and finally user से दो numbers दिए थे, and वो number को पहले हमने before swapping print किया. After that हमने prepare call function के through actually like query pass किए थे. What is the query? Query is actually call swap numbers. So what is that swap number? It's a procedure. That swap number is nothing but a procedure which is actually defined on the actually MySQL side. And how to define that procedure? तो वो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. What do we have to do? Firstly, we have to just write down create procedure and whatever the function name is, whatever the procedure name is. Okay, so यहाँ मेरे procedure का नाम swap numbers है. Okay, so procedure का नाम हमने swap number रखा, and two arguments it will accept. And यहाँ हम लोगों ने लिखा था in a integer, in b integer. What is that? In is optional actually. In नहीं लिखोगे तो भी चलेगा. हम लोग actually parameter के type study कर रहे हैं. Okay, हम लोग parameter type study कर रहे थे. So in is in the sense in type is by default. In the sense it's just used to take an input. It is just used to take an input. मतलब आपको डेटा देना है. You cannot receive this data. Okay, अगर आप प्रोसीजर को कॉल कर रहे हो गाइस, तो आप डेटा पास करोगे, बट प्रोसीजर आपको वो डेटा रिटर्न नहीं करेगा. So inside that what we did, हम लोगों ने प्रोसीजर बिगिन किया. So that's open curly bracket as you can see. Okay, and then C नाम का एक अलग से वेरिएबल डिक्लेयर किया. स्वैप का लॉजिक लिखा C equals to A equal to B, B C. Procedure complete किया, and we just actually write down D with the semicolon, and procedure को हमने MySQL में कैसे कॉल करना है वो भी लिखा है. So जब आप पहले x और y की वैल्यू 100 200 रिस्पेक्टिवली सेट कर दें, स्टेप नंबर्स को कॉल करें, दोनों आर्गुमेंट्स मतलब दोनों नंबर्स आर्गुमेंट में पास करें like a and b, and after this function when you just try to print x and y you will get original data. मतलब आपको 100 200 ही मिलेगा because actually by default argument type is int. So हमने same function यहाँ Java के थ्रू कॉल किया by using this function actually call swap numbers question mark. पहले क्वेश्चन मार्क में मुझे a नाम का वेरिएबल सेट करना था, that's actually integer. सेकंड क्वेश्चन मार्क में मुझे b नाम का वेरिएबल सेट करना था, that is also an integer. तो हम लोगों ने उसके लिए लिखा c.set integer 1, a. What is that 1? It's a question mark, and a that's my first data. 2 is a question mark number and b is actually second number. And finally हमने execute query किया, and after that after the swapping मैंने a और b को चेक किया. So what will happen once again, अगर हमने 100 200 इनपुट किया तो आउटपुट will be 100 and 200. हम लोग इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं
and finally let me run this. Okay, so let us save this called to.java and let me run this, guys. Java test, so test not found, तो हम लोग को क्या करना है, इसके लिए मैंने आपको सिखाया था क्लास पाथ. ओके, सी यूजर सी में कौन सा क्लास पाथ सेट कर रहा हूँ जहां पे एक्चुअली मेरा प्रोग्राम सेव है. स्टूडेंट डेस्कटॉप, inside the desktop actually specific DS है, inside that there is actually JDBC, inside that there is a programs. Fine. Now Java test, अब वो वर्क करेगा बट अब मुझे ड्राइवर नहीं मिल रहा. ओके, अब मुझे ड्राइवर नहीं मिल रहा तो मैं पाथ वापस सेट करूंगा, बट अप टू JDBC के अंदर अब मेरे पास MySQL ड्राइवर है. ओके फाइन, सॉरी, MySQL.jar. Now let me run Java test. So it works fine. So enter two numbers. Let I just pass 1020. So output is 1020 only. Output is 1020 only. ठीक है. So in short मेरे original number change नहीं हुए. Just check. मेरे original जो number थे वो as it is है, वो update नहीं हुए. So that's the problem. वो change नहीं हुए. So अब हम लोग क्या करें? So now that is actually why because actually our swept number, जो अपना procedure था swept numbers, it has actually in type of argument. It has actually in type of argument. So what we will do, let me just define a function once again. The same हम लोगों ने once again एक swept numbers one नाम का function define किया, but हमने argument type set किया inout. What is that inout? Inout in the sense वो actually data receive भी कर सकता है, and इसमें अगर आप A और B में changes करोगे, in short ये जो आपके formal arguments है, इसमें अगर आप changes करोगे तो original data में भी changes आ जाएगा. मैं repeat कर रहा हूँ. Inout का मतलब क्या हुआ? Whenever inout का मतलब that argument can accept the data, and if your function will change the content of A and B, तो calling statement में जो data pass किया वहाँ भी changes आएगा. Now what is the name of this function? The name of this function is actually swept numbers one. Okay, so मैं अपने original program में minus का change कर देता हूँ. अपना जो Java program है उसमें minus को हम लोग changes करते हैं. Let us just comment this line and यहाँ swept num की जगह swept numbers one कर देते हैं. Okay, fine. Let me once again run our program. Firstly, we have to compile actually. So let me compile the program and let me run the program. अब मैं यहाँ पे 100 and 200 input कर रहा हूँ. 100 is a value of A, 200 is a value of B. So let's just check. Okay, now still it's not working. अब ये वर्क करना चाहिए था, अभी भी वो वर्क नहीं कर रहा. देखो ना, A की वैल्यू 100 and 200 as it is रहा, जबकि वो चेंज होना चाहिए. So let me just open MySQL. Let me just open MySQL and हम हमारे फंक्शन को कॉल करके देखते हैं कि भाई ये क्या है. So MySQL console को ओपन कर रहे हैं. Password is blank. Now use temp1. I think temp or temp1 is a database name. That's fine. Temp1 is a database name. Now call swept nums2. But before that calling, मुझे क्या करना होगा? मुझे पहले दो variables बनाने हैं like this. Okay, ऐसा कुछ हम लोग को करना है. So let I just copy this thing and मैं यहाँ पे paste कर देता हूँ. So first of all, what I did, मैंने actually x नाम का एक variable बनाया, y नाम का एक variable बनाया, swept numbers को call किया and x and y को call किया. मतलब sorry, then x and y को print किया. So what happened actually? X and y को print किया तो x की वैल्यू क्या आई? That's actually 200 and y is actually 300. मैं once again ये चीज रिपीट कर देता हूँ. So पहले x का वैल्यू 100 सेट किया, y का वैल्यू 200 सेट हुआ. Now guys मुझे इसको प्रिंट करना है. तो प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे? Select and let us just say @x @y as before swapping. So before swapping x और y की वैल्यू क्या आ रही है? Just x and y की वैल्यू before swapping क्या आ रहा है? x का वैल्यू 100 है. This is the value of y actually. This is the value of y. Actually मैंने यहाँ पे 80 नाम दिया था इसलिए इसने इस तरीके से किया. Before swapping दोनों में आना चाहिए. But that's fine. तो x और y की वैल्यू क्या आ रही है? Let me once again just change this. और यहाँ पे हम लिख देते हैं x, y. So now that's fine. देखो ना अभी what is this? Fine. Just ignore that. Okay, हम x और y को प्रिंट कर देते हैं. So हम लोग को x और y की वैल्यू बिफोर स्वैपिंग क्या आ रही है? x की वैल्यू हमारे पास 100 है, y is nothing but 200. Now let I call swap nums. हमारे पास फंक्शन का नाम क्या था? That is swap numbers. Okay, swap nums को कॉल कर रहा हूं मैं. देखो ये swap nums वाला जो फंक्शन है वहां पे हमने इन आर्ग्यूमेंट्स दिया है, मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल में देखा था. swap nums नाम का जो फंक्शन है उसमें पैरामीटर के टाइप क्या है?
द टाइप ऑफ द पैरामीटर इज इन, सो मैं उसको कॉल कर रहा हूँ एंड आफ्टर दैट मैं एक्स और वाई को प्रिंट कर रहा हूँ, सो इट रिमेन सेम, एक्स और वाई का डेटा चेंज नहीं हुआ। नाउ मैं एक्चुअली स्वैप num1 को कॉल कर रहा हूँ। ओके, नाउ once again let me just print x and y, so just check now it's updated, x की वैल्यू 200 हो गई, y की वैल्यू 100 हो गई। तो यहाँ अपडेट हो रहा है तो जावा में भी अपडेट होना ही चाहिए था। तो जावा का प्रोग्राम once again देख लेते हैं। हमने स्वैप nums1 लिया, दो आर्गुमेंट पास किए। ओके, दोनों आर्गुमेंट पास करने के बाद गाइस हम लोगों ने cs.execute क्वेरी किया एंड आफ्टर दैट हमने इसको प्रिंट किया। ये मैंने आपको होमवर्क किया था, ये खुद से रन करना है आपको। तो गाइस यहाँ से डेटा तो पास हो गया, लाइक हमने एग्जीक्यूट क्वेरी भी कर दिया, ठीक है, हमने एग्जीक्यूट क्वेरी भी कर दिया, प्रोग्राम रन भी हो गया। बट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, ए और बी को आप प्रिंट करोगे तो वो चेंज नहीं कर रहा। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ए और बी यहाँ पे ओरिजिनल जो हमने बनाए थे वही ए और बी यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। व्हाट यू हैव टू डू हियर, यहाँ पे आपको काम क्या करना पड़ेगा। सो लास्टली आई जस्ट टोल्ड यू वन थिंग कि अगर आप एसक्यूएल पे कामकाज कर रहे हो, 1 मिनट, या फाइन। सो हम लोग को मतलब कॉलेबल स्टेटमेंट पे हमारे पास कुछ फंक्शनलिटी थी। कॉलेबल स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ फंक्शनलिटी थी, जस्ट रीड दिस। तो यहाँ पे हमारे पास रजिस्टर आउट पैरामीटर करके कोई ऑप्शन था। व्हाट इज दैट रजिस्टर आउट पैरामीटर? मैं एक्चुअली ये यूज नहीं करने वाला, आई वांट टू जस्ट यूज दिस टाइप ऑफ फंक्शन। सो व्हाट इज दैट रजिस्टर आउट पैरामीटर? या फाइन, मुझे ये चीज यूज करनी। व्हाट इज दैट रजिस्टर आउट पैरामीटर? रजिस्टर आउट पैरामीटर मतलब जैसे हमने यहाँ पे इन आउट लिखा, हमने जैसे यहाँ पे एसक्यूएल के अंदर इन आउट लिखा हुआ है, इज इट या फाइन। तो जैसे यहाँ पे हमने इन आउट करके कोई चीज लिखी थी, इसे मुझे बताना है, ओ भाई दिस इज नथिंग बट इन आउट टाइप ऑफ थिंग। जैसे या फाइन, ये एक्चुअली इन आउट के साथ ही एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे मैंने इन आउट लिखा है, सो आई वांट टू जस्ट इन्फॉर्म माय कंप्यूटर दैट इज कि मैं जावा को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इन आउट टाइप का डेटा है। इन आउट इन द सेंस जब मैं डेटा पास कर रहा हूँ तो उसको अपडेट करना है, फंक्शन कॉल करने के बाद मुझे उसको अपडेट करना है। दैट मींस इट्स अ कॉल बाय रेफरेंस टाइप ऑफ थिंग। सी लैंग्वेज के हिसाब से देखें, सो इट्स अ कॉल बाय रेफरेंस टाइप ऑफ थिंग। सो व्हाट वी हैव टू डू, डेटा सेट करने के बाद आपको एक्चुअली दोनों पैरामीटर मतलब cs के थ्रू, cs इन द सेंस व्हाट, इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलेबल स्टेटमेंट, उसके थ्रू आपको फंक्शन कॉल करना है, दैट इज रजिस्टर्ड आउट पैरामीटर। हियर वी हैव अ फंक्शन, सो 1 मिनट, या फाइन, हियर वी हैव अ फंक्शन दैट्स एक्चुअली रजिस्टर्ड आउट पैरामीटर। Now what about this integer? It's a number. Like कौन से क्वेश्चन मार्क का आप आउटपुट पैरामीटर मतलब एज आउट पैरामीटर सेट करना चाहते हो, 1 या 2? जैसे मुझे 1 को सेट करना था, so register out parameter 1 in short first question mark. In short here I have two question marks. Here I have two question marks. So before setting the data or before getting the data, मैं यहाँ पे ऐसा लिखूंगा cs dot, what is the function name? That is actually registered out parameter. Just write down that. Registered out parameter. Now 1. And what about the second argument? Just ignore that right now. For now, just ignore that. तो ये 1 का मतलब हुआ पहला क्वेश्चन मार्क, 2 का मतलब हुआ सेकंड क्वेश्चन मार्क। सीक्वेंस डजंट मैटर, पहले 2 को सेट करें बाद में 1 को सेट करें, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइन, so that is actually 2,1, 2, something, 1, something. Now what's the syntax? The second argument will be the SQL type. Second argument will be the SQL type. So for that, what I have to write down, for that मुझे यहाँ पे लिखना था types.integer. What is that types? What is that types? तो guys types नाम का एक मेरे पास okay, now let I just once again write down. मैं उसको ओपन कर देता हूँ, java.sql. Then types नाम का मेरे पास एक क्लास है, जैसे अपने पास कॉलेबल स्टेटमेंट था उसी तरीके से टाइप्स नाम का एक क्लास जिसके अंदर सबके सब डेटा टाइप्स है। जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राइवर इज यूज्ड टू जस्ट मैप द जावा डेटा टाइप विद द एसक्यूएल डेटा टाइप। तो उसको पता होना चाहिए ना एसक्यूएल का डेटा टाइप क्या है। तो java.sql नाम के पैकेज में डेटा टाइप्स का लिस्ट अवेलेबल है। ओके, सो लाइक ये पहले क्वेश्चन मार्क में आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए, एंड सेकंड क्वेश्चन मार्क में आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क में मुझे इंटीजर चाहिए था, एंड सेकंड आल्सो आई रिक्वायर्ड इंटीजर। सो मुझे बताएं कि ये मेंबर इंटीजर नाम का जो मेंबर है उसका डेटा टाइप क्या है। तो व्हाटएवर डेटा टाइप इज व्हाटएवर द डेटा टाइप इज देयर, उसका विजिबिलिटी मोड क्या है, इट इज पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या, आउटसाइड द पैकेज एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड वन इज स्टैटिक। तो स्टैटिक को कैसे एक्सेस करेंगे, टू एक्सेस द स्टैटिक डेटा मेंबर वी नीड टू यूज अ क्लास नेम। उसके लिए हमको क्लास का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मुझे क्या लिखना है, ये जो क्वेश्चन मार्क के बाद, सॉरी 1 के बाद मुझे क्या लिखना, आई हैव टू राइट डाउन टाइप्स डॉट, नाउ इंटीजर कैपिटल है कि स्मॉल है, तो पूरा इंटीजर कैपिटल लिखा, फाइन, तो वो चीज मैं लिख दूंगा इंटीजर टाइप्स डॉट इंटीजर। नाउ दैट थिंग आई विल कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर बिकॉज़ दोनों डेटा टाइप इंटीजर है। अब आपका लाइक जब आप प्रोसीजर डेवलप कर रहे हो, सो हियर आई हैव अ प्रोसीजर, हियर आई हैव अ प्रोसीजर, जस्ट चेक द डेटा टाइप ऑफ दिस प्रोसीजर। ओके, आर्गुमेंट का डेटा टाइप चेक करें। ए का डेटा टाइप इंटीजर था, बी का डेटा टाइप इंटीजर है,
So according to that you have to just write down over here. यहाँ पे integer होगा या float होगा या string होगा, something like that. So that is register output parameter. And finally register out parameter के बाद आपने data set किया. Now guys you have to fetch the data. मतलब ये करने के बाद आपको data once again get करना पड़ेगा. What is that get? तो भाई हमने ये पहले register out parameter किया, data set किया, प्रोसीजर कॉल किया, मतलब मेरा क्वेरी रन किया. क्वेरी रन करने के बाद ए और बी में चेंज हुआ है, तो ए और बी में चेंज हुआ है तो हम लोग अब क्या लिखेंगे, गेट इंटीजर कॉमा 1. पहला चेंजेस जो आया मुझे 1 में स्टोर करना था, दूसरा चेंजेस जो आया मुझे 3 में स्टोर करना था. दैट्स इट. नाउ लेट मी जस्ट प्रिंट दिस. अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि डेटा अपडेट हुआ है कि. आई होप गाइस ये समझ में आया. अगर प्रीवियस वाली चीज अगर आपने एक बार खुद से रन की है लास्ट सेशन में जो भी था वो, तो ये समझ में आना चाहिए था. जस्ट चेक. Before swapping it was 10 and 20, after swapping it is 20 and 10. This is most important program. मुझे लास्ट टाइम एक बंदे ने डेटा स्ट्रक्चर के क्लास में पूछा था, आपकी कॉलेज का 3rd का बच्चा था, उसने मुझे पूछा था सर इंपोर्टेंस चाहिए. सर इंपोर्टेंस के लिए आप प्रोफेशनल के पास नहीं पढ़ सकते अगर एग्जाम ही पास करना है तो. ओके, ये सब कुछ आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा. ओके, एंड गाइस मैं लास्ट में 5 मिनट आपको थोड़ा कुछ और जावा के बारे में बताऊंगा. अगर आप जावा में जॉब चाहते हो and what will be the salary and किस तरीके से आगे फ्यूचर है. So session end होने के टाइम पे वो भी डिस्कस करते हैं. But right now I hope ये समझ में आया. So that is actually in out parameter. That is actually in out parameter. I hope this is clear guys. Okay, that is the second type of argument. So अगर procedure या function, what is the difference between procedure and function? Procedure will never return the value. Function will always return the value. Once again let I repeat. Procedure will never return the value. तो procedure के टाइप क्या होंगे? प्रोसीजर के टाइप क्या होंगे? तो पहला टाइप होगा विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू. विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू. व्हाट अबाउट द सेकंड वन? सेकंड वन विल बी विद आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू. एंड व्हाट अबाउट फंक्शन? सो फंक्शन के टाइप्स क्या होंगे? फंक्शन में होगा विदाउट आर्गुमेंट्स एंड and with return value and with return value. And second one will be with argument with return. Okay, with argument with return. That's it. So procedure कभी भी return नहीं होगा, function always return करेगा. But अगर आप procedure से भी data return कराना चाहते हो, you can just use out type of argument or in out type of argument. Either out or in out. Okay, now what is that out? तो out नाम का एक और हम लोग को procedure बनाना है. Out type का already और एक procedure बनाना है मुझे. So let I just define the procedure. तो procedure बनाने के लिए सबसे पहले तो delimiter change करते हैं. Okay, now let I just say like this is another example. So pro 1 इसमें मुझे 2 आर्गुमेंट चाहिए. So पहला आर्गुमेंट ले लेता हूं मैं इन टाइप का. So in a integer मतलब a का डेटा टाइप इंटीजर रखा and that is by default in by default होता है, still मुझे in सेट करना. Second one is out type of argument. So out b integer. So out का मतलब देखो, in का मतलब it's always accept the data. वो इंटीजर मतलब वो always डेटा इनपुट में लेगा. आउट मतलब वो ऑलवेज आउटपुट में देगा, और इन आउट मतलब वो इन आउट दोनों कर सकता है. तो इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है. सो लेट अस जस्ट राइट डाउन बिगिन. नाउ मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ b इक्वल टू a प्लस 10. दैट्स इट. b इज इक्वल टू a प्लस 10 एंड सेट a इज इक्वल टू a प्लस 5. तो मैंने ऐसा कुछ लिखा. नाउ एंड स्लैश स्लैश दैट्स दैट. व्हाट इज द प्रॉब्लम? फाइन. 1 मिनट सेकंड्स. ठीक है, फाइन. नेटवर्क करना चाहिए. हाँ, ओके. कॉल सॉरी कॉल नहीं आएगा यहाँ पे. क्रिएट प्रोसीजर आएगा. सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक. यहाँ पे कॉल नहीं आएगा. क्रिएट प्रोसीजर देन प्रोसीजर नेम, ये हम लोग डिस्कस कर चुके. क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम. लेट मी जस्ट राइट डाउन ऑल दिस. नाउ सेमीकोलन मिल चुके. क्या है ये? सॉरी 1 मिनट. सो क्रिएट procedure, the procedure name is pro1. Let I say in a integer, out b integer. Fine. Now let I say begin. By mistake slash आ गया. क्यों जैसा हो रहा है? ठीक है, begin. Now मैं यहाँ पे लिखूंगा set b is equals to a plus 10 semicolon. Set a is equals to a plus 5. Yeah, whatever. 4 like semicolon and then double slash. So now that's it. That's done. So मैंने एक प्रोसीजर डेवलप किया. Now let I just change the delimiter value, that is actually semicolon. So now I want to call my function. So guys, अब जब एक प्रोसीजर को कॉल करना चाहते हैं तो आपको 2 आर्गुमेंट पास करना है. एक तो a का वैल्यू पास करना है, एक b का वैल्यू पास करना है. So before that
मैं एक बार वेरिएबल्स क्रिएट कर देता हूँ, तो सेट x इक्वल्स टू 100 एंड सेट y इज इक्वल्स टू 200। मैंने दो वेरिएबल बना दिए। नाउ मैं प्रोसीजर कॉल करना चाहता हूँ। माय प्रोसीजर नेम इज pro1। जस्ट चेक दिस, माय प्रोसीजर नेम इज एक्चुअली pro1। पहला आर्गुमेंट a में जाएगा, दूसरा आर्गुमेंट b में जाएगा। ओके, तो मैंने दो आर्गुमेंट लिखे हैं, सो मैं दो आर्गुमेंट पास कर सकता हूँ। लेट इट ट्राई। मैं दो आर्गुमेंट पास करने की ट्राई कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखो एक बार प्रोसीजर बनाने के टाइम पे हमने दो आर्गुमेंट्स लिखे। मैं इसको नोटपैड में ले लेता हूँ, दैट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो फाइन। तो मैंने सिंपल सा प्रोसीजर बनाया। जस्ट चेक, मेरे पास दो आर्गुमेंट्स थे a एंड b। ओके, और हम दो वेरिएबल्स बनाने वाले हैं। लेट अस फर्स्टली राइट डाउन डिलिमिटर। हमने कुछ इस स्लैश एंड फाइनली डिलिमिटर सेमीकोलन। नाउ मैंने कुछ वेरिएबल्स बनाए, सेट x इज इक्वल्स टू, नाउ देखो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाए थे क्योंकि मुझे प्रोसीजर कॉल करना है। सो x इक्वल्स टू 100 एंड सेट y इज इक्वल्स टू 200। Now guys, मुझे प्रोसीजर कॉल करना है। व्हाट इज द नेम ऑफ माय प्रोसीजर? दैट्स एक्चुअली pro1। सो मैं कुछ इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ, बट नाउ मेरे पास दो आर्गुमेंट थे, इसलिए मैंने दो आर्गुमेंट पास किया। नाउ लेट मी चेक कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो नॉट दिस वन, लेट आई ओपन द MySQL। सो नाउ व्हाट इट से, ओह जीरो रो आ सकते हैं। मुझे दो आर्गुमेंट्स देने थे तो दो पास करने पड़ेंगे ना, तो दोनों मैंने पास किए। नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट रिक्वायरमेंट? मैं एक्चुअली a और b का वैल्यू चेक करता हूँ। सो नाउ लेट अस से सेलेक्ट x, y। सो मैं दोनों की वैल्यू चेक कर रहा हूँ। सो देखो, मैंने पहला आर्गुमेंट रखा था इन टाइप का, दूसरा आर्गुमेंट रखा था आउट टाइप का। सो इन और आउट दो, मतलब x और y दोनों के अंदर डेटा था। x के अंदर 100, y के अंदर 200। x के अंदर 100, y के अंदर 200। सो व्हाट विल हैपन, ये x वाला डेटा पास होगा, मतलब a की वैल्यू 100 हो जाएगी, b की वैल्यू, b इन द सेंस y, b इन द सेंस y, तो y का वैल्यू वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, भले y के पास वैल्यू, बट इट विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ओके, और क्योंकि उसका टाइप आउट है। इन आउट होता तो वैल्यू एक्सेप्ट भी करता और रिटर्न भी करता, बट राइट नाउ इट विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, बिकॉज़ द टाइप ऑफ b इज आउट। ओके, सो आई होप कि आपने MySQL में ये सब डिस्कस किया होगा, आपको पढ़ाया होगा। ओके, बिकॉज़ मुझे एक्चुअली जावा के साथ इसको एक्सेस करना है, नथिंग। सो b इक्वल टू a प्लस 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? सॉरी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a का वैल्यू हमने यहां से क्या पास किया था? x इन द सेंस 100, तो यहां पे 100 प्लस 10 दैट मींस 110 आएगा। a का वैल्यू भी हमने चेंज करने की ट्राई की, तो a का वैल्यू 105 होना चाहिए, बट व्हाट इज द टाइप ऑफ a? दैट इज इन। सो a में चेंजेस नहीं आना चाहिए, y में, मतलब x में चेंजेस नहीं आना चाहिए, y में आना चाहिए। सो जस्ट चेक, x का वैल्यू 100 है, y का वैल्यू एक्चुअली 110 हो गया। y का वैल्यू एक्चुअली कितना था? y का वैल्यू एक्चुअली 200 था, बट दैट विल नॉट कंसीडर बिकॉज़ हमने ओवरराइट किया हुआ प्रोसीजर के अंदर, हमने उसको ओवरराइट किया। नाउ लेट आई जस्ट प्रिंट दिस, सिलेक्ट @x, @y। सो आउटकम क्या आएगा? x और y की वैल्यू 100 एंड लाइक यहाँ पे 200 सेट की थी हमने, बट व्हाट विल बी द आउटकम? जैसे हमने अभी देखा, सो x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 120। सो इनका मतलब वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है वैल्यू। आप यहाँ a में, लाइक पहला आर्गुमेंट आपका x था, वो a में स्टोर हुआ, सो डेटा गया जरूर, बट a में चेंजेस करोगे तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। व्हाट अबाउट आउट? आउट का मतलब उसमें डेटा एक्सेप्ट नहीं कराओगे तो चलेगा, बट आउटपुट में डेटा चेंज होगा ही होगा। मैं ये प्रूव कर रहा हूँ, मैं आपको जो बोल रहा हूँ कि लाइक अगर मान लो मैं प्रोसीजर वंस अगेन कॉल करूँ, व्हाट इज माय प्रोसीजर नेम? दैट्स pro1, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10,20। सो पहले मैंने वेरिएबल के नाम पास किए थे, जस्ट चेक दिस स्टेटमेंट। मैंने वेरिएबल के नाम पास किए थे लाइक @x, @y, बट राइट नाउ मैं स्टैटिक डेटा पास कर रहा हूँ 10,20। So 10 must be copied to A and 20 must be copied to B. 10 must be copied to A, 20 must be copied to B. ऐसा होना चाहिए। Now let me just press enter. Oh, it just throws the error. What is the error? यहाँ हमने पहले दो आर्गुमेंट पास किए तो चल गया था। Now it has an error. What is the error? So guys, आप अब static data पास करो। Static is not allowed. Why not allowed? 10 चलेगा because it's a type of first argument type is in, तो उसमें तो डेटा चलेगा, बट सेकंड के अंदर आउट टाइप का आर्गुमेंट, जस्ट चेक, सेकंड में आउट टाइप का आर्गुमेंट, दैट मींस व्हाट? उसमें वो डेटा रिटर्न कर रहा है। तो आपके पास वेरिएबल का नाम होगा तो डेटा रिटर्न होगा, बाकी नहीं होगा। मतलब अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखे, लेट आई से लाइक @y, देन इट वर्क्स फाइन, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप y को प्रिंट करें, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y? हमने x का वैल्यू क्या दिया था? दैट विल बी 10, तो 10 स्टोर हुआ a के अंदर, सो b का वैल्यू होगा 10 plus 10, that will be 20, तो b का वैल्यू 20 हुआ, that means y का वैल्यू 20 हुआ। So just check, y का वैल्यू 20 हुआ। Fine, so like अगर आप यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर रहे हैं, तो that's my first calling। अगर मैं इस तरीके से कॉल कर रहा हूँ, कॉल
pro1 10 comma like let us say 20, so it will throw an error, return not pass actually out type of data. Out की जगह पे आप डेटा पास नहीं कर सकते, you have to pass a variable name. Okay, because second parameter, because second parameter is out. Okay, so what do you mean by out? Out in the sense what? Out in the sense like आप ऐसा लिख सकते थे @y. So y must, you must declare, you must have a y type of variable. Okay, and यहाँ पे ऐसा लिखने का मतलब क्या हुआ? Like second must be the variable name, क्योंकि ये डेटा रिटर्न करने वाला है, so second must be the variable name. Okay, but what about in out? In out में आप इन आउट में क्या लिख सकते हो? इन में डेटा भी पास होगा और रिटर्न भी होगा, डेटा पास भी होगा और उसको आप अपडेट करोगे तो चेंज भी होगा. सो इन शॉर्ट वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ पैरामीटर. इन ऑलवेज डेटा एक्सेप्ट करेगा, आउट ऑलवेज डेटा रिटर्न करेगा, इन आउट दैट इज अ मिक्सचर ऑफ इन एंड आउट. इन शॉर्ट इट हैज बोथ द फंक्शनैलिटी. सो इसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देते हैं. ओके, सो जावा में मुझे इसके लिए प्रोग्राम लिखना है. सो फाइन, सो call3.java. So now I want to call the function and the function name is actually right now pro1. So function का नाम मेरा यहाँ पे pro1 है. So I will just pass two numbers. Okay, वो दो नंबर हम before setting ऐसा कुछ नहीं होगा. So before function calling, अब यहाँ मैसेज चेंज कर देते हैं. Before function calling, so हमने पहले a और b की वैल्यू यूजर से fetch की, a और b को प्रिंट किया. Now let me just call the function pro1. Let me just call the function pro1. So हमने query लिख दी. Okay, अब callable statement को ये string query पास कर दिया. अब फर्स्ट टाइप का आर्गुमेंट क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इन. हमने यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा था, इट्स अ टाइप ऑफ इन. व्हाट अबाउट द सेकंड? इट इज अ टाइप ऑफ आउट. फर्स्ट इन टाइप का बंदा है, सेकंड आउट टाइप का बंदा है. ओके, तो सिर्फ हम लोग को सेकंड को ही रजिस्टर करना है, फर्स्ट को रजिस्टर नहीं कर सकते, बिकॉज़ एज पर द एसक्यूएल, हमने जो एसक्यूएल में फंक्शन बनाया, एज पर दैट फर्स्ट आर्गुमेंट इज अ टाइप ऑफ इन. तो इन के अंदर आप आउट पैरामीटर रजिस्टर नहीं कर सकते. तो मुझे सिर्फ सेकंड को रजिस्टर करना था. नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट सेकंड? द टाइप ऑफ द सेकंड इज इंटीजर. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्चुअली टाइप्स डॉट इंटीजर. सो आई होप आपको ये समझ में आया. व्हाट इज दैट सेकंड? इट्स नथिंग बट अ क्वेश्चन मार्क नंबर. सो फाइन, सो पहले में हमने डेटा सेट किया, दैट्स दैट. सेकंड में भी हमने वेरिएबल का नाम सेट किया, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. आप ये सेट नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि सेकंड में से हम लोग को डेटा लेना है. जस्ट इग्नोर दैट. अगर वो नहीं लिखते देन इट्स फाइन. बट अब डेटा लोगे कहां से? यू हैव टू फेच द डेटा फ्रॉम सेकंड ओनली. आपको सेकंड से ही डेटा लेना है. ओके, आपको सेकंड से ही डेटा लेना है. नाउ यू कैन जस्ट प्रिंट ए एंड बी. Okay, so starting में मैं यूजर से एक नंबर लूंगा तो भी चलेगा. So now let I just fetch on the single number. दोनों डेटा देना चाहते हो then also fine. That's not a big deal. यहाँ पे प्रिंट करने का कोई मतलब नहीं है. Okay, यहाँ से मैं मैसेज हटा देता हूँ after stepping because right now step नहीं कर रहे. So let me run this call3.java. So let I pass first number, that's 10. So first is 10, b is 20. Why 20, sir? Because actually like हमने यहाँ पे क्या लिखा था, b equals to a plus 10. So जो भी आप पहला आर्गुमेंट पास करोगे उसमें प्लस 10 करके वो b में वैल्यू रखना है, प्लस 10. So a की वैल्यू 10 थी तो b की वैल्यू होगी 10 plus 10, that will be 20. 10 plus 10, that is actually 20. So यहाँ से हम एक ही डेटा पास करने वाले हैं. Okay, so that is most important program. आपको ऐसा पूछा जाएगा, explain otherwise differentiate in out and in out arguments. ये कंपलसरी प्रोग्राम होगा या कंपलसरी थ्योरी में पूछा जाएगा. Like explain callable statements with argument types, that will be 7 mark of question. Otherwise explain the argument types of callable statement, that will be a 4 mark of question. I think 4 mark की question अभी भी है सिलेबस में. So 4 मार्क और 7 मार्क में ये चीज होती है. That's pretty simple. In can accept the data, out always return the data. In out can accept the data as well as can return the answer. But guys be careful, आपको उसमें ये प्रोसीजर वगैरह लिखना पड़ेगा. ओके, ये आपको लिखना पड़ेगा, एग्जांपल्स देने पड़ेंगे अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो. एंड स्टिल दिस इज नॉट अ टफ वन. ओके, और ये सब कुछ मैं वेबसाइट के ऊपर रखता जा रहा हूँ, तो आप लोग को यहाँ से पूरा जेडीबी से मिल जाना चाहिए. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये पूरा आपको मिल जाएगा. फाइन. सो वैसे देखिए तो सबके सब प्रोग्राम्स हमने अब तक जो भी लर्न किए, लाइक हाउ टू लोड द डेटाबेस ड्राइवर, इंसर्ट द रिकॉर्ड. ओके, बाद में प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू कैसे इंसर्ट करें, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, देन स्टेटमेंट के थ्रू ऐसे डिस्प्ले करना है, प्रिपेयर स्टेटमेंट के थ्रू कैसे करना है, लाइक देन रिजल्ट सेट मेटा डेटा एंड दिस आर द कॉलेबल स्टेटमेंट्स. ओके, ये सब कॉलेबल स्टेटमेंट की एग्जांपल. तो एक बार देख लीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइएगा. Now fine, the next thing is like now fine sir, हम लोग को समझ में आ गया what is callable. So right now we have 3 different statements, and these 3 different statements are actually statement, prepared statement and callable statements. So all these having a functionality to execute the query.
Okay, all these having the functionality to just execute the query. That's that. But now if someone says, sir, I want to know about the database. What do you mean by that? Database in the sense, right now आपको टेबल का स्कीमा पता है. अगर मुझे टेबल का स्कीमा in the sense टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए, तो हम रिजल्ट सेट मेटाडेटा को पूछ सकते हैं. So how to get the object of result set metadata? So guys, अगर मुझे result set metadata का object चाहिए, what is the use of this result set metadata? कि मान लो मेरे पास टेबल था, so now I have a table and the table name is actually okay, हमने यहाँ टेबल बनाया नहीं है, टेबल हमारे पास है ही नहीं एक्चुअली, इसके अंदर सिर्फ डेटाबेस था. डेटाबेस के अंदर डायरेक्ट प्रोसीजर बनाई. कंसीडर आपके पास टेबल है, टेबल नेम इज एम्प्लॉय, टेबल नेम इज एम्प्लॉय. एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर क्या? आई वांट टू नो व्हाट इज द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इन द सेंस हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, व्हाट इज द टाइप ऑफ द कॉलम, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज of that particular column, or I mean to say, like, our next thing is which one is the primary key, which is the secondary key, and etc. thing. What is the index key? And मुझे ये सब कुछ knowledge चाहिए. Then guys, we have a class that's actually result set metadata. And how to get the object of result set metadata? So we have a function. So you have to just write down like this: result set metadata is equals to result set dot get metadata. So now how to get the object of this result set? जैसे मैंने लिख दिया rs dot get metadata. So how to get the object of this rs? So for that you have to just write down. Let I just create an object of rs. For that, guys, you must have actually either of the statement object, maybe statement object, prepared statement object, और callable statement. तीनों में से किसी का भी अगर आपके पास object है, फिर ऐसे result मेरे पास statement का object था, otherwise मेरे पास prepared statement का object था. You have to call one function that is actually execute query. आपको एक function call करना है that is execute query, which will actually return the object of result set. So now using that result set, आपको result set metadata मिल जाएगा. That's it. And what is actually result set metadata? So it will have an information about actually table, particular table का उसके पास information होगा. जैसे कि prepared statement का अगर मैंने object बनाया होता, तो मैं ऐसा कुछ लिखता, prepared statement ps is equals to on dot prepared statement, और यहाँ लिखता मैं select star from text. ठीक है, तो सिलेक्ट की क्वेरी होगी तो ये हम एग्जीक्यूट क्वेरी लिखने वाले हैं. अगर आपने सिलेक्ट स्टार का क्वेरी, सिलेक्ट स्टार मतलब पूरा टेबल मुझे मिलना चाहिए, या दो कॉलम जैसे मैंने लिखा होता. ओके, मैंने ऐसा कुछ लिखा होता लाइक सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, देन आई विल हैव एक्चुअली 2 कॉलम्स. तो मुझे ये 2 कॉलम मिले होते टेस्ट नाम के टेबल से, स्टिल आई विल हैव अ टेबल. ओके, तो मुझे टेस्ट 1 एंड टेस्ट सॉरी मुझे एक्चुअली कॉलम 1 और कॉलम 2 का साइज चाहिए, उनका कॉलम का एक्चुअल नाम चाहिए, और उसमें प्राइमरी की है या सेकेंडरी की, मुझे इन शॉर्ट मुझे उस स्ट्रक्चर की टोटल इंफॉर्मेशन चाहिए. सो फॉर दैट वी हैव रिजल्ट सेट metadata. But now someone says, sir, I'm not interested to just want to know a structure of the result set, but I want to know actually like database schema. I want to know database in the sense, what is the database name, which driver you are using, what is the version of the driver, what's the username, what's the password to enter in this particular database. Okay, so I want to know about the actually database. So guys, for that we have data set metadata. We have data set metadata actually a class. So let me just write down java p java.sql dot. What is the name of our class? The name of the class is actually what is the name? Data set metadata. Okay, be very small. So much. 1 minute. Okay, do one thing. अगर ये नहीं आ रहा यहाँ पे जावा में जाइए, just write down one thing. हम लोग को डेटा सेट मेटाडेटा चाहिए ना, just write down डेटा सेट so थोड़ी हाँ जावा की हेल्प ले लेते हैं. Okay, fine. So data set metadata is not available actually. Finally, let me Google it. Database metadata. Okay, that's my mistake actually. That is actually database metadata, not the data set. So that is database metadata. So now let me just write down database metadata. Okay, fine. Still it is not there. Okay, sorry. मैंने पैकेज का नाम Java P लिख दिया. तो आजा, fine. Okay. So what's the name? The name is actually database metadata. Okay, so it has lots of functionality. So what is the functionality? Like procedure अगर आपने कोई बना रखी है तो procedure की information है.
ओके अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कॉलम है तो कॉलम की इंफॉर्मेशन है, आपके पास वर्जन है तो आपके पास मान लो अपने डेटाबेस के 3-4 वर्जन बना रखे हैं तो उन सब की वर्जन की इंफॉर्मेशन है। आई एम स्टिल नॉट इंटरेस्टेड टू लाइक गेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन। मुझे एक्चुअली चाहिए था ओए व्हाट इज द यूजर नेम, व्हाट इज द यूआरएल, यूआरएल इन द सेंस कौन से आईपी एड्रेस पे कौन से पोर्ट नंबर पे मेरा डेटाबेस लॉन्च्ड है, व्हाट इज द डेटाबेस प्रोडक्ट नेम, इन शॉर्ट प्रोडक्ट का नाम क्या है, प्रोडक्ट का वर्जन क्या है, ड्राइवर का नाम क्या है, ड्राइवर का वर्जन क्या है, लाइक दैट। सो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आई वांट टू। So let me just develop one program जो जिसमें एक्चुअली डेटाबेस मेटा डेटा यूज करके हम लोग कुछ वर्क करते हैं। सो स्क्रैच से बनाते हैं गाइस। सो import java.sql.star। हम लोग को क्या काम काज लिखना था, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट आई जस्ट डिफाइन फंक्शन दैट इज पब्लिक स्टैटिक void main string args throws exception फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला कामकाज मेरा था एक्चुअली ड्राइवर लोड करना। सो क्लास डॉट फॉर नेम com.mysql jdbc.driver, that's the first task. After that connection con is equals to, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, driver manager dot get connection. Now we have to, what we have to write down, first of all we have to write down protocol like http colon. So यहाँ पे अपना प्रोटोकॉल होगा jdbc colon mysql, मतलब हम jdbc से mysql के साथ कनेक्टिविटी करने वाले हैं। Fine, that's my protocol like https colon double slash. Now localhost colon 3306. Why localhost colon 3306? So localhost because my database is launched on same machine, and 3306 because the port number of the database is actually 3306. Now we have to write down a table name, sorry, database name. So that's actually test. Fine. Now what is my requirement? I want to just fire the query. No, I do not want to fire the query. मुझे query fire नहीं करनी, मुझे database की information। So guys, database की information connection के पास। Okay, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है database metadata। आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है database data metadata ds is equals to con dot get metadata, con dot get metadata. But still, let me just confirm one thing. Okay, हम लोग को like connection को पूछते हैं, ओए connection, do you have this function java.sql dot connection? So what is connection? It's also an interface. What is connection? It is an interface which have all the functions required to actually required to deal with the database. Okay, जिसके पास actually prepare statement है, prepare call है और create statement है, something like that. And commit or not commit नाम की चीज भी उसके पास by default है, rollback भी उसके पास है, and here we have get metadata is a function which actually return database metadata, which actually return database metadata. Okay, so now let me just call this function get metadata which actually return database metadata. Now observe one thing, यहाँ पे हमारे पास get metadata नाम का function था, but ये result set में था, जो result set metadata का object दे रहा है। Here we have a function inside the connection. Function name is same, but it returns an object of actually database metadata. Now finally हम लोग को result set, sorry, database metadata मिल चुका। Now let me call some functions. So what functions? So here we discuss something. हम लोग को कुछ actually functions चाहिए थे, जैसे कि get URL, get username. So let I just write down bs dot get URL. So get URL, URL is capital. So get URL, then get username. Now get driver name. So here we have actually like get driver name, then get driver version and something like that. So let me just call all these 4 functions. Okay, let me run on like only these 4 functions. Okay, so that is actually database metadata.java. Now let me run, guys. So Java C database metadata.java. What's the problem? Okay, sorry, you have double quotation here. Okay, yeah, it's a string only. And one more, here you have to pass actually username, and what is the password? Password is blank. You have to pass 2 more arguments. Let me run this. Now that's successfully compiled. Now let me run. So this is the problem. What is the problem? Temp is not available. Okay, temp नाम का कोई चीज मेरे पास था नहीं. So let me check. Temp नाम का database है क्या है अपने पास? So database is okay. That is temp1. Okay, temp नहीं है, वो temp1 है. So let me change this. और यहाँ temp1 कर देते हैं. Now let once again we compile and run the program. Still we have some problem. So okay, what is the query?
सब कुछ सही है. JDBC call on MySQL, everything is fine. JDBC call on MySQL, localhost 0306 table. Okay, sorry, this is root. That's not okay. Compile and run. So now here we have. So guys, this is the URL. This is the URL. मान लो अब आप सर्वर पे काम कर रहे हो, सॉरी आप क्लाइंट पे काम कर रहे हो. क्लाइंट इन द सेंस आप एक बड़ी सी कंपनी में जॉब कर रहे हो जहाँ पे डेटाबेस सर्वर पे ऑलरेडी डिप्लॉयड है और आपको एक क्लाइंट मशीन दिया गया है. तो आपको जब क्लाइंट मशीन, जैसे सूरत में 2-3 बड़ी कंपनी है जहां पे आपको ये स्टेटमेंट लिखने की परमिशन मिलती है, आपको पता ही नहीं होता आप कौन से डेटाबेस कौन से यूआरएल पे काम कर रहे हो. But now if someone wants to ask, like if someone asks you, okay, like what's the database name or what's the URL, आप कौन से सर्वर पे काम कर रहे हो, what's the server IP address, मेरे पास ये लाइन नहीं थी, just consider ये 2 लाइन मेरे पास नहीं था, just ignore. मुझे डायरेक्टली कनेक्शन का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहा है. someone asks, ओए what's the database name, what's the URL of the database, what's the username and what's the password. तो मैं क्या करूंगा, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो भाई को देना ही पड़ेगा, अदरवाइज मैं क्वेरी कैसे रन करूं. तो मुझे कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल गया था, तो उससे मैं बाकी सब इंफॉर्मेशन ले सकता हूं. जस्ट चेक दिस आर द रिमेनिंग इंफॉर्मेशन. Okay, the JDBC colon MySQL colon / localhost 3306, that's actually URL, and temp1, that's actually a name of the database. Root @ localhost, that's your username. Password वो नहीं show करता. Okay, that's your database name and that is the actual version of the database. Okay, so these are some basic information about the database. तो हम लोगों ने ये क्यों डिस्कस किया, हम ऑफ द ट्रैक क्यों चले, बिकॉज गाइस आपको रिजल्ट सेट मेटाडेटा एंड डेटाबेस मेटाडेटा भी पूछा जाता है. एक मार्क के क्वेश्चन या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सप्लेन डेटाबेस मेटाडेटा और रिजल्ट सेट मेटाडेटा, और दोनों साइड में पूछा. देन 4 मार्क्स. सो रिजल्ट सेट मेटाडेटा का कामकाज क्या है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे, बट रिजल्ट सेट मेटाडेटा is just used to know about the structure of the table, and what about database metadata, it is just used to know a structure of database. Okay, so दोनों का अपना अपना यूज है. So database metadata, database related information जैसे कि auto commit है कि नहीं, what is the version, कौन से मशीन पे launched है, what is the major version of driver, what is the minor version of driver. Now what is major version and minor version, you can google it. बाकी जितने भी functionalities हमारे पास है वो सब एक बार गूगल कर सकते हो. there are lots of functionalities. Okay, fine. So there are lots of functionalities. तो आप इनको गूगल कर सकते हो, काफी सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें. ओके, तो आप इन सबको गूगल कर सकते हो कि क्या क्या चीजें मेरे पास है, जैसे प्रोसीजर का नाम, फंक्शन का नाम, उसके अंदर कितने प्रोसीजर्स बने, कितने फंक्शंस बने हुए हैं. ओके, व्हाट इज द कर्सर, जेडीबीसी के साथ क्या किस हिसाब से डीलिंग हो रहा है, दैट्स अ लॉट्स ऑफ थिंग्स एक्चुअली. ये सब गूगल कर सकते हैं. फाइन. सो नाउ दैट्स दैट फॉर टुडेज सेशन.